اپنے پینلسٹ کو بلانے جا رہا ہوں. اسکلس ڈیولپمنٹ میں بات ہوگی. ماڈریٹر عثمان کمال ہمارے درمیان موجود ہیں. ٹرینر ہے, کارپوریٹ ٹرینر ہے, اور اس پورے پینل کو ہوسٹ کرے گی, ماڈریٹ کرے گی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مس عثمان کمال. تالیوں کی گونج آنی چاہیے خواتین کو جس طرح سے. مسٹر عبد الوہاب CEC پاشا ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کھل کر کلیپ کی جائے. مسٹر عبد الوہاب سر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواتین کا ایونٹ ہے اور خواتین کے آپ بھی ماشاء اللہ سپورٹر ہیں, بیداری ہیں, جس طرح سے ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مسٹر عبد الوہاب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد الوہاب ہے اور میں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. فرسٹ آف آل ہم لوگ اپنی سافٹ ویئر انڈسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں وومن ان لیڈرشپ کافی فقدان نظر آتا ہے, مگر آئی اپریشیٹ سنا اوور ہیئر کہ انہوں نے جس قسم کا ماشاء اللہ آج ایونٹ آرگنائز کیا ہے جہاں پہ مختلف واک آف لائف سے خواتین اور مرد حضرات نے بھی پارٹیسپیشن کی ہے. چونکہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں, فری لانسرز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, اور کمپنیز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. تو جو خواتین آج تشریف لے کے آئی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ دے شوڈ نو دا ٹریک کہ انہیں زندگی میں کافی کچھ کم وقت میں کیسے حاصل کرنا ہے. اس چیز کو کائنڈلی نوٹ کر لیجیے کہ آپ کے پاس 3 چیزیں بہت ضروری ہیں سکسیس کے لیے. نمبر 1 آپ کی ٹیکنیکل اسکل. گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل اسکلس پہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہے. نیفٹا کے پروجیکٹس ہیں, جیپٹا کے پروجیکٹس ہیں, منسٹری آف IT ہے, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے, اور وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس کے اوپر فری ٹریننگ ایجوکیشنس دے رہی ہیں. کائنڈلی اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اپنے آپ کو اپگریڈ کریں. نمبر 2 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 ماہ کا, 3 ماہ کا, 4 ماہ کا کورس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکل سیٹ آ گیا ہے. ایسی چیز نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 2000 گھنٹے کا آپ کو ایکسپیرئنس چاہیے. تو نمبر 1 آپ کا ٹیکنیکل اسکل سیٹ, نمبر 2 آپ کا ایکسپیرئنس, اور نمبر 3 آپ کو چاہیے جو سیل اسکلس. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں اسکل سیکھ لیتی ہیں, ایکسپیرئنس بھی لے لیتی ہیں, بٹ ریئلی ہے کہ اپنے اسکل سیٹ کو سیل کیسے کرنا ہے. تو ان 3 چیزوں کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو سیلس کے حوالے سے, اگر آپ کو ٹیک کے حوالے سے, اگر آپ کو اسکل سیٹ کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے, کوئی بھی ہیلپ چاہیے, آپ بادشاہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیک کی مدد میں کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرے گا. ہمارے پاس فارم GBT کراچی اور ایسٹ میں ملتان سے لے کے ویسٹ میں کوئٹہ تک ہم لوگ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری بہت زیادہ آپ جیسی خواتین جو ہیں وہ اپنے اسٹارٹ اپس کو اسٹارٹ کر رہی ہیں. آپ کے ذہن میں جو بزنس آئیڈیاز ہیں, آئیں
हमारे साथ डिस्कस करें, हमारे बिजनेस आइडियाज शेयर करें। हम लोग आपको जिस कदर भी हेल्प चाहिए होगी, हम लोग आपको उसके ऊपर सपोर्ट कर रहे होंगे, आपकी मेंटरिंग कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा फुकदान जो है हमारी यूथ को इसका मेंटरशिप का है। उनके पास आइडियाज़ हैं मगर रोड मैप क्लियर नहीं होता। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनका एक प्रूवन एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जिस किस्म की भी आपको उसमें हेल्प चाहिए होगी, पाशा इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। Once again, I appreciate all the effort done by her marketplace, Sana and all the team. It's a wonderful show. Thank you very much. थैंक यू सर अब्दुल वहाब। और अब हम पैनल डिस्कशन की जानब बढ़ते हैं। मिस उस्मान कमाल हमारे दरमियान मौजूद है। मिस प्लीज हम ऑन द स्टेज और आगे प्रोसीड करें पैनल टॉक को। ओवर टू यू। आज ये डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डॉक्टर एडरमान जी और वाइस प्रिंसिपल हजारा याकूब के साए में इन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जो इनका पूरा पूरा हक है। यहाँ तक कि लिटरेचर और टेक्नोलॉजी में साइंटिफिक बच्चों के शान निशाना खड़े। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैम मुनज़्ज़ा के ज़रिए से मैम तैनार इन बच्चों के साथ ऐसी मोहब्बत अपनाने और शफ़क़त से पेश आती है गोया इनके उस्ताद नहीं दोस्त। वो एक मजबूत चट्टान की तरह उनके साथ खड़े। 100 years of educating you, 100 साल से ज़ाइन के इस तवील अरसे में कनेट कॉलेज तमाम ख़वातीन को बाहिम्मत और बाइख्तियार बनाता है बग़ैर किसी रंग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कोई जोश नजर नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दैट्स बेटर। आई होप आप सब खैरियत से हैं और आज इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मुबारक दूंगी मेरे प्यारे भाई आमिर खान को, जिनको सब डॉक्टर आमिर खान कह रहे हैं माशाल्लाह से, और सना खान उनकी मिसेस को फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है एक पैनल डिस्कशन को लीड करने के हवाले से, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो कि आज ख़वातीन को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके लिए ये इवेंट अरेंज किया गया है, तो हम उस पर्सपेक्टिव में इस टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत अहम है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट स्पेशली फॉर फीमेल्स। मैं कुछ रिसर्च करी थी तो पता चला कि हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन में शरह ख़वानगी जो है नाख़वानगी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। यानी मर्दों में इलिटरेसी जो है वो 14% है, फीमेल्स दैट इज़ 32%। लेकिन पॉपुलेशन में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी ख़वातीन इस मुल्क की जितनी आबादी है उसमें से 50% ख़वातीन है। सो इस हवाले से कंसर्न भी है कि इक्वल पॉपुलेशन रेट के बावजूद तालीम के मौके या तालीम में ख़वातीन के पीछे खास हम बात करेंगे कि स्किल डेवलप करके किस तरह से इस गैप को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत एक ज़बरदस्त लिस्ट है पैनलिस्ट की और ये सब एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। तो मैं मदू करूँगी। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है मुदस्सिर नईम साहब, तो प्लीज़ आप तशरीफ लाइए मुदस्सिर। तहमीना असलम राजा,
मिस राशिदा अब्बास। अब मैं अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करूँगा सर स्टेज पर आए और अपना स्पीकर मशहूर करें। मैं मुतमिस हूँ मुदस्सर नईम साहब से कि सर अब्दुल वहाब साहब को स्पीकर हो जाए। हमारे पैनल को ज्वाइन करें, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात होगी जी। मिस बेनिश राजा। मैं जी सब पैनलिस्ट को वेलकम करूंगी और शुक्रगुजार हूँ इन सबकी कि उन्होंने टाइम निकाला। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मुदस्सिर नईम साहब से मैं एक तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे तमाम पैनलिस्ट अपना तारुफ खुद करवाएं। उसकी वजह ये कि जब कोई दूसरा तारुफ करवाता है तो शायद वो उनको अच्छी तरह बता नहीं पाता कि ये लोग कितने अकम्पलिश्ड हैं। तो मैं सवाल करूँगी, सवाल के जवाब से पहले expecting from each panelist to give a brief introduction of himself or herself. So मुदस्सिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तो बेसिक से हम बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की खवानीन में क्या ज़रूरत है और कौन सी वो एसेंशियल स्किल्स हैं जो खवानीन को डेवलप करना चाहिए। Uzma, thank you so much. I really appreciate Sana and Amir for hosting this such great event. और इस टाइम पीरियड के अंदर जिसमें हम लोग रह रहे हैं और हमारी इस वक्त 50% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स के ऊपर मुश्तमिल है और फीमेल इस वक्त अगर हम इकोनॉमिकल स्ट्रेस की बात करते हैं तो उस वक्त हम कभी भी इकोनॉमिकली वायबल कंट्री नहीं बन सकते जब तक हम उस 50% ऑफ पॉपुलेशन को इक्वली अपनी गिग इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनाएंगे। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द आंसर, आई एम मुदस्सिर नईम, COT Solutions इज़ ए ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि इनिशियली फोकस्ड है एजुटेक के ऊपर। हम लोग टेक ट्रेनिंग के अंदर और कंप्यूटर स्किल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए 2001 से ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं। इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख के करीब स्टूडेंट बेस ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की इस टेक बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि हमारे यहाँ से देखने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर 2 टाइम प्रेसिडेंशियल ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान IT हाउसेज एसोसिएशन बादशाह के अंदर इंडस्ट्री एंगेजमेंट और स्किल्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर भी हूँ और इस लिहाज से कहीं ना कहीं भी अपनी अपना से कोशिश करता रहता हूँ कि हमें भी किसी जगह के ऊपर जो कुछ चीज़ें पता हैं वो सोसाइटी के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए स्पेशली अपनी बहनों और बेटियों के लिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स योर आंसर, हमारे पास इस वक्त अगर किसी जगह के ऊपर भी फीमेल्स को हमने एम्पावर नहीं करेंगे तो ये चीज़ आउट ऑफ क्वेश्चन है। हम किसी जगह के ऊपर भी इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं जा सकते। जब हम लोगों ने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर दे रहे तो क्या वजह है कि हम उनको आगे एम्पावर नहीं कर पा रहे। हम उनको अपनी जगह के ऊपर इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, उनकी डाइवर्सिटी तो है ही है, वो मल्टीपल डिवर्स बैकग्राउंड के साथ नजर रखते हैं। जब हम लोगों को अपनी इस इकॉनमी के अंदर इंक्लूड करना है तो हमें उन एलिमेंट को देखना है जो कि कहीं ना कहीं गैप्स हैं। उन गैप्स के अंदर सबसे बड़ा गैप इसी स्किल्स का है जिसकी तरफ उस्मा ने क्वेश्चन किया।
हमारा जो गैप है वो दोनों तरह का है, टेक्निकल स्किल्स का भी है और सॉफ्ट स्किल्स का भी है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ जगह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड है वो उस लिहाज से अवेलेबल नहीं है कि वो बच्चों तक पहुँच सके, और किसी जगह के ऊपर हम खवातीन के एंड पर जब बात आते हैं तो घर के अंदर उनको सेट असाइड करते रहते हैं कि चले इनकी बात रहने देते हैं, बेटों को अगर है तो हम आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरी हम्बल सबमिशन सब जगह के ऊपर है कि हमें टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों के ऊपर ही फोकस करना है। टेक्निकल स्किल्स से मुराद मेरी किसी जगह के ऊपर भी कोड, अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो डाटा साइंसेस की बात करेंगे, AI की बात करेंगे, वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो मेजर टेक्निकल स्किल्स हैं उनके ऊपर होना ज़रूरी है अगर हमने टेक साइड में कराना है। अगर हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के अंदर मूव करना है तो डेफिनेटली हमें जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्पेसिफिक स्किल है उनको पता होना चाहिए। अगर हमें हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करना है तो ये 3 सेक्टर्स में जैसे जिक्र किया जिसके अंदर खवातीन बेहतर अंदाज के अंदर फोकस और अच्छे अंदाज के अंदर काम कर सकते हैं, और इसके अंदर टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल दोनों के ऊपर के हमें फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुदस्सिर, आपने बहुत वैलिड बात की कि हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स को मैं अभी इस डिस्कशन से पहले हनान के साथ भी डिस्कस कर रही थी इस चीज़ को कि हमारे यहाँ पे जहाँ पे डिजिटल स्किल्स की बात की जाती है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, हम बहुत सी चीज़ें जो सॉफ्ट साइड पे हैं उनको एड्रेस नहीं करते, बिकॉज हमने अल्टीमेटली उसको मार्केट में भी तो लेके जाना है और कस्टमर तक पहुँचने, कस्टमर के साथ बातचीत किस तरह से करनी है। मुझे अक्सर लोग अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये स्किल आती है, लेकिन हमें वो कस्टमर नहीं मिलता। वो कस्टमर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो उससे उन्हें पता नहीं कि वो कस्टमर कहाँ पाया जाए और वहाँ जाके उससे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपने अपनी स्किल की रेलेवेंस शो करनी है उसके प्रॉब्लम के साथ, सो दैट योर क्लाइंट और आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँगी और बात करूँगी से कि क्या बैरियर्स हैं जो खवातीन को रोकते हैं, दैट होल्ड्स देम बैक फ्रॉम डेवलपिंग न्यू स्किल्स। तो आप इस पर कुछ बताना और किस तरह से हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आपका उस्मान कि आपने इस पैनल को मॉडरेट किया और साथ ही साथ सना खान, आमिर खान का जिन्होंने इस महफिल को सजाया, हमें यहाँ मजबूर किया कि हम बात कर सकें, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें और जो बाकी पैनलिस्ट हैं, बाकी श्रोता हैं, उनसे सीख के जाएँ कि उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनसे गेन हासिल करें। तो थैंक यू सो मच मिस अगेन, और आप सबका भी शुक्रिया, आप सब यहाँ मौजूद है। मेरा नाम हनैन ज़ैदी है और मेरा ताल्लुक IT से है। मैंने मल्टीपल कंपनीज में काम किया जिसमें PIA है, सिस्को सिस्टम्स है, हुआवे है, और उसके बाद मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करके अपना काम कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे 8 साल हो गए प्रोसेस करते हुए। मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं वेस्ट में, और यहाँ से बैठ कर उनको अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। साथ ही साथ एक इनिशिएटिव है हाल ई लर्निंग के नाम से, और उसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप है, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्लेसमेंट है। तो ये खुसूसन उन लोगों के लिए है कि जो 3 शहरों से बाहर या ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ तक रसाई नहीं है या उनकी रसाई जो है इंस्टीट्यूट तक नहीं है। और ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ये एक वेलफेयर इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है स्किल्स का और बैरियर्स का कि कौन से बैरियर्स हैं जो रोक रहे हैं खवातीन को स्किल्स हासिल करने में, तो एक बहुत बड़ा बैरियर तो बज़ात ख़ुद हमारी जो डेमोग्राफिक्स है ये है, या जो पॉपुलेशन है हमारी जिस तरह से वैसे भाई बात कर रहे थे कि 50% से ज़्यादा खवातीन हैं हमारी, लेकिन IT इंडस्ट्री की अगर बात करें, टेक की बात करें, तो उस नज़र से काम ले रहा हूँ और बहुत ज़्यादा नंबर बता रहा हूँ। 14% हमारी खवातीन है टेक इंडस्ट्री में, सिर्फ 14 ये रेशो है। और अगर आप बिजनेस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो 1%, सिर्फ 1% जो है खवातीन का है जो बिजनेस कर रही हैं या वो एंटरप्रेन्योर्स है। सो ये बताते हुए एक बहुत बड़ा गैप है कि 51% आपकी पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन, जिसमें से सिर्फ 14% यूटिलाइज होती है। बैरियर्स क्या है? बैरियर्स जो है वो इसलिए है कि हमारी जो टेक इंडस्ट्री है, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं वो 3 शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये KLI है जहाँ पे आपकी IT इंडस्ट्री मौजूद है। इसके बाहर अगर
एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इन 3 शहरों की कुल आबादी जो है वो हमारी आबादी का एक 5 करोड़ होगी, बहुत ज़्यादा 5.5 करोड़, 80% हमारी आबादी जो है वो 3 शहरों के बाहर रहती है, जिसमें ख़वातीन ज़ाहिर है बड़ी तादाद में, और हर बच्चा इतना प्रिविलेज नहीं होता खुसूसन ख़वातीन कि वो ट्रैवल करके अपने शहरों से, अपने गाँव मुल्कों से जो है वो इन शहरों में आ सकें, क्योंकि उधर पर इजाज़त नहीं मिल रही होती, उनके लिए रहने के मसाइल हैं, वो कहाँ रहेंगी, वो कैसे ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करेंगी। फिर एक सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर किसी के पास इतने पैसे हैं कि घर में बच्चा और बच्ची में से किसी एक को पढ़ा सके, तो उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो लड़के को पढ़ाएगा और वो लड़की को नहीं पढ़ाएगा। एक बहुत मेजर फैक्टर है जो ये रोल प्ले कर रहा है आपकी इम्बैलेंस। फिर साथ ही साथ और बहुत सारे मसाइल हैं जब वो आते हैं, मार्केट में आती हैं काम करने के लिए या उसको सीखने के लिए, तो जो रोड्स पे उनको मुश्किलात का सामना होता है, जब कम्यूट करती हैं तो वो मुश्किलात जो फेस करने को पड़ती हैं, ये भी वज़ाहत एक बहुत बड़ा बैरियर, बहुत बड़ा हर्डल है सारे काम। इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो इसका पहला तरीका तो ये है कि हम उन तक रसाई हासिल करें, उन शहरों में जहाँ पे बाकी आबादी हमारी है वहाँ पे IT इंडस्ट्री को जो है ग्रो करें, वहाँ इंस्टीट्यूट्स डेवलप, कंपनीज अपने ऑफिस खोलें ताकि लोकल लोगों को जो है उसका फ़ायदा हो सके। दूसरी चीज़ ये कि ये काम ज़ाहिर है टाइम टेकिंग है, फौरी तौर पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं लगा सकते, आपको जो है वो लोग नहीं मिलते हैं, कई अफराद नहीं मिलते हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग करवा सकें। सो जो काम अर्जेंटली किया जा सकता है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के ज़रिए उन लोगों तक पहुँच सकते हैं कि जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आके अच्छे शेड्यूल्स में, जैसे मुसर भाई करना शेड्यूल है, इस तरह के अच्छे शेड्यूल्स में जो है वो ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सकते या नहीं आ सकते, तो हम उन तक रसाई हासिल करें। हम ये काम मिलकर कर सकते हैं, हम इनके साथ मिलकर कर सकते हैं, हम बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं। सो एक बार ये है, तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बारे में डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू मनायत। आपकी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊँगी। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, और इसी तरह से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो मेल डोमिनेटेड हैं, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स हैं। तो मेरा अंश से सवाल है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर एक रोल प्ले कर सकती हैं कि इस डोमिनेंस को में ख़वातीन को जो है वो मौका मिले, इस डोमिनेंस से वो फाइट कर सकें, और किस तरह से इदारे क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जी, और we have 98% women workforce in phase 1 of the question से related ये बात है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। I think it's a very relevant question. So we have 98% women workforce from around Pakistan and they are all remote. So बिल्कुल इसी एस्पेक्ट के ऊपर हमने काम करना शुरू किया 4 साल पहले कि हम इसको किस तरह इस गैप को फिल कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए कंपनी हमें प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, हमें फंडिंग्स की तरफ लाना चाहिए, हमें NGO से कोलैबोरेट करना चाहिए टू रन द प्रोग्राम्स जिसमें हम वुमेन को एम्पावर कर सकें। और कोई अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आपको लगता है कि वुमेन इसको अच्छा कर सकें, जैसे मैं मुदस्सिर साहब की बात से बात करूँगा कि जहाँ पर वो परफॉर्म कर सकते हैं कम से कम आप वहाँ उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दें। जैसे कि मेडिकल की फील्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, UX की फील्ड है, तो इसमें मैंने देखा कि उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत बेहतर होती है। और अब तक अगर मैं आपको बताऊँ कि हमें तकरीबन 200 से ऊपर लेडीज़ जो रिमोट है, जिसमें मैं एक दो लोगों के नाम आपको लेना चाहूँगा। हमारी टीचर की है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो लोरा लेक से, बट शी स्टडीड फ्रॉम us and her family got her back to लोरा लेक, बस पढ़ा दिया मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिल के एज एन IT सेक्टर या कंपनी या गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स को करना चाहिए। मैं अपने तौर पे एज ए बूटस्ट्रैप कंपनीज को कर रहा हूँ, मुझे लगता है और भी लोग अगर करेंगे आपको लोग मिल जाते हैं जिसमें टू फाइंड आउट और फॉरवर्ड है। पर आउट ऑफ दोस 200 फ्यू सक्सेस स्टोरीज में 110 या 112 हैं जो इस वक्त अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, और उनमें से तकरीबन 13 या 14 हैं जिनकी अपनी कंपनीज हैं। कुछ देर पहले तक 3-4 को यहाँ मौजूद थे, लेकिन आई थिंक इट्स लेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि और उसके अलावा हमें पॉलिसी लेवल पे काम करना चाहिए।
कंपनी और एसोसिएटेड ग्रुप्स पे काम करें तो वी कैन सिग्निफिकेंट मेक अ चेंज एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू थैंक यू अनस। दिनेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेंटोरशिप किस तरह से एक रोल प्ले कर सकती है स्किल डेवलपमेंट खवातीन में हम बात करते हैं, और किस तरह से जो है वो खवातीन जो स्किल डेवलप करना चाहती हैं वो मेंटोर तक एक्सेस कर सकती हैं। First of all, I will say thank you to Dr. Amir Khan and Dr. Sana Khan for inviting me over here and letting me share my thoughts with you. Now, first of all, how to learn the skills from the mentor. We have this very deficiency in our society. This very big difference. दिनेश, आपकी आवाज़ नहीं शायद सुनाई दे रही। We have this very big deficiency in our society. People are not ready to teach others. We have seen people who are doing excellent jobs, but they won't teach others. And especially for women, the chances are very little. And as I can tell you from my story, I had to learn every skill, everything on my very own self. And if you want to create this mentorship relation between the student and the teacher, or the skill learning student and the skill teaching tutor, you need to appreciate the woman to move forward, and you also need to make the mentors realize that it won't just bring competition for them, you increase their excellence. When you teach more, you learn more. There is nothing like a competition between a student and a teacher. And apart from that,